بہت سارے جہاں یہ نیا کام ہے کہ پنجاب کی اور پاکستان کی تاریخ کی پہلی چیف منسٹر خاتون ہیں، وہاں یہ بھی بہت سارے نئے کام انہوں نے اپنے اس دور حکومت میں کیے ہیں اور آتے کیے ہیں. ابھی ان کو جو ہے وہ حکومت میں آئے 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا ہے اور پورے ملک کے اندر جو ایک بڑا چیلنج ہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو اس کے لیے، اس کے اندر جو ہے وہ ایسا کوئی پروگرام ڈیوائز کیا جائے کہ عام آدمی کو اس میں ریلیز کیا جا سکے. سو یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ 64 لاکھ سے زیادہ خاندان جو ہے ان کو ان کے ڈور اسٹیپ کے اوپر پورا ایک ہیمپر جس کے اندر آٹا ہے، چینی ہے، بیسن ہے، چاول ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کے گھروں پر بغیر کسی انتظار کے، بغیر کسی قطار کے جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے. اور اسی حوالے سے بہت ساری جب اتنا بڑا پروگرام ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی شکایت بھی آتی ہے اور ہم وہ حکومت نہیں ہے کہ جو تنقید سے جو ہے وہ پریشان ہوں یا اپنی اصلاح نہ کر سکے. ہم اوپن ہیں اصلاح کرنے کے لیے. جہاں پر کچھ پرابلمز 1-2 واقعات آئے جہاں پر میڈم چیف منسٹر کو بھی معلوم ہوا کہ قطاریں لگی ہوئی ہیں، انہوں نے بہت ڈسپلیئر دیا، اس کے اوپر جو لوگ ذمہ داران تھے ان کے خلاف کارروائی ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیٹا ہے اس کے حوالے سے بہت سارے کوشچنز اٹھے، لیکن اویلیبل ڈیٹا یہی تھا جس کے اوپر ہمیں اس پروگرام کو چیف منسٹر صاحبہ نے ڈیزائن کیا. اور جو یہ پروگرام ہے اس کے حوالے سے بھی اور جو اس کے ساتھ ساتھ جہاں جن کو یہ ہیمپرز نہیں ملے، یہ بھی پاکستان اور پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ 2 پروگرام ایٹ اے ٹائم چلے. نگہبان رمضان پیکج جو ہے وہ علیحدہ سے چل رہا ہے. اس کے بعد جو ہمارے ماڈل بازار ہیں، جن ڈسٹرکٹس کے اندر ماڈل بازار نہیں تھے وہاں پر ماڈل بازار پہلی دفعہ پنجاب کے اندر جو 25 ڈسٹرکٹس ہیں اس کے اندر ہماری جو ایگریکلچر پرائز ہماری جو فیئر پرائز شاپس ہیں ان کو بنایا گیا اور 15 ڈسٹرکٹس ایسے تھے جہاں پر ماڈل بازار ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. ان ڈسٹرکٹس کے اندر بھی جو ہے وہ ماڈل بازار اور رمضان کے بازار جو ہے وہ بنائے گئے ہیں جہاں پر 25% ہر جو اشیاء ضرورت ہے وہ کم قیمت میں مل رہی ہے. یہ بھی بتاؤں، یہ بھی پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ہمیشہ جو ڈسکاؤنٹڈ پرائس ہے وہ 15 سے 20% یا 10 سے 15% کے بیچ میں ہوتی تھی. 25% کبھی بھی جو ہے وہ پرائس کم نہیں کی گئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارا کام ہوا ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ منسٹر صاحب آپ کو بتائیں گے. جو ہمارے مجسٹریٹس ہیں جن کو باقاعدہ میں نے جب کسی طرح بھی گزارش کی تھی کہ جن کو اس دفعہ ٹریننگ دے کر بھجوایا گیا ہے گراؤنڈ کے اندر اور وہ اس کے اوپر پورا ان کا ڈیش بورڈ موجود ہے جس کے اوپر وہ مانیٹر ہو رہے ہیں. اس کی باقی ڈیٹیلز کے لیے جو یہ سب 25% کمی کے اوپر جو چیزیں مل رہی ہیں، جو رمضان بازار کے اندر اس وقت لوگ خود پبلکلی سوشل میڈیا ہو اس کے اوپر وہ خود جو ہے وہ پرائسز لگا کے بتا رہے ہیں کہ پرائس میں کمی آ رہی ہے. اور ان پرائسز جو 25% کمی ہے اس کے بعد بھی ہمارے منسٹر صاحبان، میں عاشق کرمانی صاحب کو بھی ضرور یہاں پر یاد کرنا چاہتی ہوں، وہ آ نہیں سکے، ان کی کچھ کمٹمنٹس تھی. ان دونوں نے مل کر جو ہے وہ اور بھی اس کے اوپر کمی کا جو ہے وہ اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ خوشخبری جو ہے دیں گے. اور یہ آن گوئنگ پروسیس ہوگا. جیسے میں نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ ایک نیا محکمہ ڈیوائز کیا جا رہا ہے، اتھارٹی بنائی جا رہی ہے جو 12 مہینے شہر خرد و نوش جو ہے. اور یہ کام ہے، مین کام ہے. میری چیف منسٹر وہ ہے جو کہتی ہے کہ وہ آلو اور پیاز اور ٹماٹر کی قیمت میں کمی کرنے آئی ہے. ایک آپ نے وزیر اعظم وہ بھی دیکھا تھا جو کہتا تھا میں آلو پیاز ٹماٹر کی قیمت کم کرنے نہیں آیا کیونکہ اس کا عام آدمی سے تعلق نہیں تھا. میری چیف منسٹر کا تعلق عام آدمی کی پرابلم سے بھی ہے، عام آدمی کے جو مسائل کے حل سے بھی ہے. اور وہ خود جو ہے وہ عام لوگوں کے بیچ میں جا کر ان کے مسائل اب رمضان بازار کے اندر ان کا جا کر یہ پورا اس کو دیکھنا، ریٹ لسٹ کو میک شور کرنا اور جو باقی محکمانہ چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ منسٹر صاحب آپ کو بتائیں گے. اوور ٹو یو جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منسٹر صاحب. اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں ساری چیزوں کو کور کیا ہے. میں تھوڑا سا اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا بٹ میں تھوڑا سا آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح رمضان نگہبان جو پیکج ہے اس میں 65 لاکھ جو لوگ ہیں ان کو ان کی دہلیز پہ ان کو فوڈ ہیمپرز دیے گئے ہیں. اس میں جو ڈیٹیل بتائی ہے جو چیزیں ہیں آٹا، چینی، چاول، گھی، بیسن. تو ایک چیز ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور میں کوئی چیلنج نہیں کر رہا، آپ سے مدد مانگ رہا ہوں کہ کوئی ایک کمپلینٹ مجھے بتا دیں. پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہے کہ اتنا بڑا پیکج جو 30 بلین سے زیادہ کی اماؤنٹ پہ جو بالکل اس کو لوگوں کو جو نیڈی تھے ان تک پہنچایا گیا. کوئی کیو جس پہ میڈیا ہمیشہ میڈیا کی اسکرینز پڑتی ہیں کہ دیکھیں لمبی لمبی لائنیں لگ گئی ہیں اور
कोई एक चीज कोड करके बता दे। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट कि एक माइंड सेट है, आप टेलीविजन आज भी ऑन करें तो हर प्रोग्राम पे एक स्वीपिंग स्टेटमेंट आती है, जी गवर्नमेंट फ्री आटा देती है और वो खाने के काबिल नहीं होता, गवर्नमेंट फूड हैम्पर्स देती है और वो थर्ड रेटेड होते हैं। कोई एक कंप्लेंट बता दे, ये चैलेंज नहीं है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और उस पे जहां पे ये क्वेश्चन मार्क उठा होगा कि कोई क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया गया है, 24/7 उसको पंजाब फूड अथॉरिटी उसकी क्वालिटी को इंश्योर कर रही है। हम खुद उन गोडाउन पे जाते हैं जहाँ पे इसकी पैकिंग हो रही है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स वहाँ पे हर वक्त मौजूद होती है। और सबसे बड़ा चैलेंज यही था जो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब की तरफ से हमें जो गिवन टारगेट था वो यही था कि भाई किसी किस्म का कोई क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर किसी इक्का दुक्का जगह पे नारोवाल साइड पे किसी जगह पे अगर कंप्लेंट आई है तो हमारे पास ये जो हमने जो वेंडर्स जो इंगेज किए थे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने किए थे उनका ट्रेसेबल डाटा मौजूद था कि कौन आटा दे रहा है, कौन सी मिर्च आ रहा है, कहाँ से चीनी आ रही है, कहाँ से बेसन आ रहा है, कौन सी ब्रांड का घी आ रहा है। तो उनको बाकायदा तौर पे ये कह दिया गया था कि जी अगर कोई कंप्लेंट आएगी तो आप महीनों के लिए बिजनेस से आउट है, सीलिंग भी होगी और महीनों के लिए बिजनेस से आउट है। उससे ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आया कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेजर कंप्लेंट नहीं। ये मैं बिल्कुल शेयर करना चाहता हूँ और बिल्कुल ट्राई करता हूँ जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स चल रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से थर्ड रेटेड चीजें, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो बड़ा चैलेंज था कि जी लोगों के दहलीज तक उनको इज्जत के साथ उन तक पहुंचे और कोई क्यूज ना एस्टैब्लिश हो। ऑल्टरनेट डे पे मीटिंग होती है जिसमें मिनिस्टर्स बैठते हैं और एक एक चीज को वहां पे निटी-ग्रिटीज को डिस्कस किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये कह सकते हैं कि 50% से अबव हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। जो गिवन डेट है 10th ऑफ रमजान, उस तक इंशाल्लाह हम सक्सेसफुली और कंफर्टेबली अपने टारगेट को हम अचीव कर लेंगे। ये दो चीजें हो गई। उसके बाद बहुत बड़ा चैलेंज था और हमेशा होता है बदकिस्मती के साथ, ये कौन करता है, ये एक तरफ गवर्नमेंट, जिस तरह मिनिस्टर साहबा ने कहा कि हर गवर्नमेंट आके अपने तौर पे कोशिश करती है कि ये जो प्राइस हाइक आती है उसको कंट्रोल करें और ये जो स्टॉकिस्ट होते हैं इनको लगाम डालें, सब तरह के सवाल आपकी तरफ से भी उठने हैं। तो उस पे बाकायदा तौर पे जो प्राइसेस जो पिछले साल रमजान के दरमियान थी इंश्योर किया गया कि उनको हर सूरत में उस पर लेके आया जाए। मैं एक एग्जाम्पल कोड करता हूँ कि अनियन प्याज, जो प्याज है जब रमजान स्टार्ट हुआ तो 350 पे मेरे और आपके घरों में जा रहा था। 350 पे फिगर याद रखिएगा। आज 5वां रमजान है, अल्हम्दुलिल्लाह आज नोटिफाइड प्राइस 200 है, मगर 200 पे बिक नहीं रहा। मैं आपको कह रहा हूँ 250 पे आज बिक रहा है। मैं आपको ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसकी कैपिंग होगी 200 के नीचे। ये वो कंसर्न है जो अभी मैडम मिनिस्टर कह रही थी रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ, तो उनका कंसर्न है कि हमें आलू टमाटर प्याज की प्राइसेस पे नजर रखनी है और इसको कंट्रोल करना है। जो हमारी इस वक्त रमजान बाजार के अंदर जो है वो 150 रुपीज जो है वो मैं उस पर आ रहा हूँ। उस पर एक इस तरह हो गया, ये खुद ही नहीं हो गया, घर बैठ के नहीं हो गया, इसकी ऑक्शन को बाकायदा तौर पर मॉनिटर किया गया। ऑक्शन टाइम पे अर्ली इन द मॉर्निंग कमिश्नर डीसी जिनका ये काम नहीं हुआ करता था उनके साथ जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे मिनिस्टर एग्री नहीं है, मैं कोड करूंगा, हम अर्ली इन द मॉर्निंग ऑक्शन टाइम पे वहां पे मंडियों में पहुंचे। ओवरऑल ये पंजाब की मैं सूरत बता रहा हूँ, वहां पे जिस मिनिस्टर की जिस जो पॉलिटिकल साइड से लोगों की और एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको हेड किया एटलीस्ट डिप्टी कमिश्नर ने, उससे प्राइसेस को रोज मॉनिटरिंग के साथ इसको हम ये नहीं है कि फौरी तौर पे आर्म ट्विस्टिंग करके एक दिन में लेके आ सकते हैं, बट कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि 1-2 दिन में प्राइसेस और नीचे आएंगी। आलू टमाटर प्याज के हवाले से मैं बात करूं तो इसका हमने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स भी कर रखे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अल्लाह का शुक्र है हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर ना आते तो हमने इसके लिए मीट ट्रैकिंग पॉइंट्स का सोच रखा था जो हमने CS ऑफिस में भी हमारी सारी डिस्कशन होती है। उसके बाद हमने एक ऑप्शन दी, ये तो है ओवरऑल जो मुझे आप सबको, एक ऑप्शन वो है जो इससे भी कम इससे भी पिसा हुआ तबका उनके लिए ऑप्शन दी कि उनके पास मॉडल बाजार यहाँ पे एस्टेब्लिश है, वहां पे 25% से ज्यादा आज भी वहां पे प्याज की कीमत 150 से नीचे है, बिक रहा है। और डेली में मैं विजिट करता हूँ, 1-2 बाजार रोज विजिट करता हूँ। आप जाके देखें कि वहां पे जो लोग बड़ी अच्छे तरीके से वहां पे बाइंग हो रही है और उसकी क्वालिटी और उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया गया। हाँ एक चीज जरूर की गई है कि वहां पे कमर्शियल यूज के लिए लोग आना शुरू हो गए थे और लाइनों में लग के बड़ी बल्क में खरीदारी कर रहे थे, उसको डिस्करेज किया। और
अलाउ किया कि 1-2 kg दिया जाए, उसमें भी अच्छा खासा मार्जिन है। और 50 से ज्यादा हमारे मॉडल बाजार हैं जो बड़ा सक्सेसफुली इसको बाकायदा तौर पे चला रहे हैं और ये हमारा प्लान चल रहा है। उसके बाद बहुत जरूरी था कि ओवरऑल ये तो हमने गवर्नमेंट ने ऑप्शन दी मॉडल बाजार की, और जो आप फूड हैम्पर्स दे रहे हैं, तो ये तो चंद लाख है ना, जो करोड़ों की आबादी है, उसके लिए हमने बाकायदा तौर पे मजिस्ट्रेट नोटिफाइड करवाए। और आज तक पंजाब, क्योंकि मैं शायद डेकेड से देख रहा हूँ इस बिजनेस को, ये जिसको फूड और ये प्राइस और ये सारी चीजें, ये मेरा ख्याल है कि जिस तरह ये मैं आपको फूड हैम्पर्स की बात की कि इतनी बड़ी नंबर्स में कभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई होगी। और मैं एक और चीज कह रहा हूँ जो पब्लिक इंटरेस्ट में है कि 1400 से ज्यादा नोटिफाइड प्राइस मजिस्ट्रेट जो है ना वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। इन 4 दिनों जो गुजर गए उनका मैं आपको फिगर बता देता हूँ कि जो 1400 से ज्यादा जो प्राइस मजिस्ट्रेट है, इनकी इंस्पेक्शन 3 लाख के करीब, मेरे पास फिगर्स मौजूद है, मैं राउंड फिगर में आपसे बात कर रहा हूँ, 3 लाख के करीब इंस्पेक्शन उन्होंने की है। और बदकिस्मती के साथ तकरीबन 27-28 हजार जगहों पे वायलेशन पाई गई प्राइस की किसी न किसी हवाले से। ये जरा अंदाजा करें कि हमारे माशरा किस तरफ चल रहा है कि 3 लाख इंस्पेक्शन हो गई, उसमें 28-30 हजार रमजान के महीने में, जिसमें शयातीन को जकड़ दिया जाता है। मेरा आपका ईमान है, मगर वो कैसे शयातीन है जो अभी तक जकड़े नहीं है, मगर गवर्नमेंट की एफर्ट वहां पे आपको मौजूद नजर आएगी कि 28-30 हजार के करीब वायलेशंस पाई गई। उसमें पहली दफा है कि इतनी बड़ी तादाद में इन शयातीन को, मैं बदकिस्मती के साथ बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ मगर ये सच है कि इन शयातीन को जो अभी तक नहीं जकड़े गए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मरियम नवाज शरीफ साहबा की हदायत में इनको जकड़ा और 2200-2300 के करीब इन 4 दिनों में लोग जो सीरियस वायलेशन पे थे उनको अरेस्ट किया। ऑब्वियसली बात है फाइन भी इम्पोज किया, मगर इनका इलाज फाइन इम्पोज करना नहीं है। हमें जो पब्लिक से और आप जैसे दोस्तों से जो फीडबैक आता है वो यही आता है कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और ये फर्स्ट टाइम है कि इन 3-4 दिनों में 2200-2300 के करीब लोगों को अरेस्ट भी करवाया है। और बाकायदा तौर पे ये मजिस्ट्रेट वो ट्रेडिशनल मजिस्ट्रेट नहीं है, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग सेशन हुए तो उनको पता है और वो खुद ही मैंडेटरी है कि वो खुद अपनी इंस्पेक्शन करेंगे। और जो एक सिस्टम है जिसपे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि मजिस्ट्रेट खुद गया है, उसने अपने नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 को भेज दिया, उसका भी सिस्टम एस्टेब्लिश है। हम डैशबोर्ड पे देख सकते हैं कि कितने मजिस्ट्रेट ने कितनी इंस्पेक्शंस की है। मैंडेटरी किया है कि 50 इंस्पेक्शंस एक मजिस्ट्रेट करेगा, और अगर एक मजिस्ट्रेट 50 करता है तो आप बिल्कुल इस पे निकाल सकते हैं कि जो 1500 मजिस्ट्रेट है वो तकरीबन 75,000 के करीब उनकी वो जो है ना अपनी इंस्पेक्शन हो जाएगी। QR सिस्टम के तहत हम उनको मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं कि जी वो वाकई मजिस्ट्रेट फील्ड में है या उसने अपनी वायरस या व्हीकल देके किसी को आगे किया। ये अरेंजमेंट्स हैं जो हम अभी तक कर चुके हैं, और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में जिस तरह हमने फूड हैम्पर्स को पहले आया कि जी क्यूज लग गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज स्मूथली ये सिस्टम चल रहा है, इसी तरह मैं कॉन्फिडेंटली आपके साथ ये बात कर सकता हूं कि आने वाले कपल ऑफ डेज में जो प्राइसेस हैं, ये जो हमारी मेन जो आइटम्स हैं, उसको भी हम जो एक रीजनेबल लेवल पे ले आएंगे, और जो दूसरी आइटम्स जिसपे जो फेयर प्राइस शॉप पे जो तकरीबन 13 के करीब है, वो उनको भी इंशाल्लाह उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी को भी स्मूथली हम रन कर लेंगे। ये हमारी साइड से कोई अब आपका सवाल है जो है ये मैन्युफैक्चरर्स ने आपने कहा, ये आपने बड़ा अच्छा बात की कि जी शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। ये शैतान बड़ा है शायद घी मैन्युफैक्चरर्स का कि आपने 15 रुपए कम करने का ऐलान किया था तो उन्होंने 15 रुपए बढ़वा दिए। ये अरसलान साहब का एक बड़ा वैलिड सवाल है। अभी इस यहाँ से ये जो आपकी जो आपके साथ जो मीडिया टॉक है, इसके बाद मेरा अगला पॉइंट यही है कि मैं 2-3 पॉइंट्स पे अभी नहीं मैं करूँ, कल आप तक भी पहुंच जाएगा। 2-3 पॉइंट्स वहां पे हम जा रहे हैं और उस पर सीरियस रेड हुई, आपको पता चल जाएगा। हमारे लिए कोई बड़ा छोटा शैतान नहीं है, जो बंदा भी पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएगा हमारे लिए वो शैतान है, हमारा वो दुश्मन है। और एक बात ये बिल्कुल मीडिया पे मैंने ये देखा है और मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी ओवरडूइंग हुई है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा कंफर्म कर ले। जो गवर्नमेंट का ब्रांड वाइज नोटिफाइड प्राइस है उससे 15 रुपए मैं यहाँ पे आने से पहले
اس کو کنفرم کر کے آیا ہوں کہ جو گورنمنٹ کا انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کا جو نوٹیفائڈ جو ریٹ ہے اس سے 15 روپے انہوں نے لیس پہ ہر صورت میں انشور کیا ہے. اور وہ اتنے بھی برے لوگ نہیں ہیں, ان کی کمٹمنٹ کو میں سمجھتا ہوں کیونکہ میرا ان کے ساتھ ڈیکڈز کا ایک تجربہ ہے کہ وہ اون کریں گے اپنی کمٹمنٹ کو. ایک چیز. دوسرا جو پولٹری کی میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ پولٹری ایسوسی ایشن کے ساتھ ہم بیٹھے, انہوں نے اوور آل 10 روپے اور ہمارے جو ماڈل بازار ہے وہاں پہ 25 روپے انہوں نے پرائز وہاں پہ اناؤنس کر رکھی ہے. یہ 2 ایسوسی ایشن کی کنٹریبیوشن ہے اور ہم اس کو مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں کہ یہ صرف ان کی اناؤنسمنٹ کی حد تک ہے یا فیلڈ میں بھی اس کی ریفلیکشن ہے. اور یقین دلاتے ہیں کہ میں نے آپ سے جو بات کی ہے کہ ابھی آپ کے ساتھ بات کرنے کے بعد میرا فوری جو وزٹس ہیں وہ انہی جگہوں پہ ہیں کہ جو جن کو میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ یہ چھوٹے بڑے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. جو عوام کے انٹرسٹ کی بات نہیں کرے گا اپنی بیسٹ ایفرٹ کے ذریعے وہ انشاءاللہ اس کو کچلنے کی کوشش شہر کی آبادی آپ کو پتا ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور ماڈل بازار کو ہی 2013 کا جو ماڈل تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ماڈل بازاروں کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی جائے شہر میں تاکہ زیادہ سے زیادہ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو اگر آپ شہر کی بات کریں لاہور اسپیسیفک بات کریں تو یہاں پہ 10 ماڈل بازار یہاں پہ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ان کو 20 بھی کر لیں گے نا تو پھر بھی شاید میری اپنی سوچ ہے پریکٹیکلی اسپیکنگ کہ شاید ہم پورے لاہور کو فلٹر نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے شہر اسپیسیفک بات کی تھی. اس کے لیے ضروری ہے کہ اوور آل جس میں میں آپ ہر خاص و عام جائے اس کو کوئی ماپ اس کا جو ہے نا اس کی مانیٹرنگ کے ساتھ اس کو چیزیں ملے کنٹرول پرائز کے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پرائز رجسٹرڈ ہے وہ اپنی ڈیوٹی فلفل کریں اور اس کو گورنمنٹ اس کو اپنا سبجیکٹ سمجھے اور اس کی کلوز مانیٹرنگ کرے. اس پہ کام ہو رہا ہے. پڑھنا چاہتی ہوں جو ہمارا آلو ہے اس کی 37 روپیز جو ہے وہ 25% لیس کر کے جو اس کی پرائز بنتی تھی اوپن مارکیٹ میں 54 ہے اور یہ 17 روپے کا ڈفرنس ہے جو آپ کو اس کا ملے گا. پیاز کا صاحب بتا چکے ہیں امپورٹڈ پیاز. اچھا پیاز بھی 2 طرح کے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ پرائز افسوس کی بات یہ ہے کہ جب آپ کی ہیڈ لائنز چلتی ہیں تو آپ یہی مہربانی ہمارے ساتھ لہسن پہ بھی کرتے ہیں کہ لہسن جو امپورٹڈ ہے اس کی پرائز جو ہے وہ اور ہے, جو دیسی جو زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کی پرائز اور ہے. لیکن آپ ہیڈ لائنز بھائی میں بات کر لوں بھائی صاحب میں بات کر لوں پلیز جی میں اگر بات کر لوں پہلے تو اس کے بعد ٹماٹر جو ہے اس کی قیمت میں 38 روپے کی کمی جو ہے, کدو کی قیمت میں 45 روپے کی کمی ہے جی. جو چائنا کا ہمارا وہ ہے اس کے اوپر 25 روپے کی کمی ہے. جو گارلک دیسی ہے جس کی میں نے لہسن کی بات کی اس میں 80 روپے کی کمی ہے. جو دالیں ہیں اس میں 65 روپے کی کمی ہے. اس کے بعد بیسن میں 65 روپے کی کمی ہے. پھر جو سیب ہے اس میں 90 روپے کی کمی ہے. جو بنانا ہے کیلا اس پہ 50 روپے کی کمی ہے. جو کھجورے ہیں اس کے اوپر 138 روپے کی کمی جو ہے وہ کی گئی ہے ان بازاروں کے اندر. جو خربوزہ ہے 60 روپے کی کمی ہے. جو امرود ہے اس میں 65 روپے کی کمی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جو اچھی چیز ہے ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ کی بجائے, اور یہ بھی میں آن ریکارڈ آپ سب کے لیے کہنا چاہتی ہوں کہ برائے مہربانی ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیجیے. جتنے بھی پروونشل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ کراچی ہے, وہ پشاور ہے, وہ کوئٹہ ہے, ان سب کے ریکارڈ نکلوا کے دیکھیے. سب سے کم پرائسز مہنگائی کی جو سب سے کم شرح ہے وہ اس وقت لاہور کے اندر ہے. باقی شہروں میں باقی کیپٹلز میں اس کی شرح کہیں زیادہ ہے. تو برائے مہربانی جو کام جہاں اچھا ہو رہا ہے اس کو بھی اس طرح کی ایکسرسائز بھی آپ کو کسی جگہ پہ اس طرح کی ایکسرسائز بھی آپ کو کسی پروونس میں اس طرح کی ایکسرسائز کسی پروونس میں آپ کو ملے تو ضرور شیئر کریے گا. کوئی اس طرح کی ایکسرسائز جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جو ہے آٹے کی شارٹیج آپ کو پتا ہے آپ پہلے بھی کرسٹل ہے آتی رہی اب وہ کرتے ہیں اس کو. وہ پھر جو ہے ایک دفعہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ گندم جو ہے وہ سرکاری قیمت پر نہیں مل رہی مہنگی مل رہی ہے. تو کیا ہم دیکھیں گے کہ آپ ان کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور جو ہے ہمارا میرا صاحب ہمارا ڈیلی بیسس پہ ان کے ساتھ کنیکشن موجود ہے. آپ بالکل فکر نہیں کریں, آپ ہماری بات کو نا اس کو قبول کریں. کوئی شارٹیج نہیں ہے, کوئی شارٹیج نہیں ہے. پنجاب میں سرپلس آتا ہے اور انشاءاللہ ہوئے گی بھی. ایسے نہیں کیا اچھا کام کریں لیکن آج آئی ایم ایف کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے آج اس پہ نہیں پتا جس پہ
की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी ज्यादा कीमतें जो अब कम हो जाएंगे। आपकी मेहरबानी है अगर बाजारों में काम होती है तो आप ऊपर मार्केट में काम करिए। वो मैं ओपन मार्केट की बात कर रहा हूँ, जो भी चीफ मिनिस्टर साहब पढ़ के सुनाई है, ये ओपन मार्केट में आप कंपैरिजन कर लीजिएगा। आप ये 4-5 दिनों का मतलब 8 दिन पहले की प्राइस देख लीजिएगा और आप देख लीजिएगा, आपको वादे डिफरेंस नजर बताइएगा रमजान का 5 तहकीक पे ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहले मरियम नवाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहाँ से भी मैंने एक सवाल पूछा कि आपकी जो डिलीवरी टीमों की तादाद है वो कितनी है, अगर पंजाब की नहीं अगर सामने तो लाहौर की कम से कम बता दें। और दूसरा ये है कि जो इसका टारगेट है मुकम्मल होने का वो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने 20 रमजान बताया था। चूंकि पायलट प्रोजेक्ट में हमने तो बहुत तेजी से मुकम्मल किया है। पायलट प्रोजेक्ट के लाखों डिलीवरीज जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हो गई थी। और ये भी आपको क्रेडिट देना चाहिए चीफ मिनिस्टर साहबा पर, उनकी टीम को, कि जो हम टारगेट से आगे चल रहे हैं। जो मैंने गुजारिश की कि जो प्राइसेस भी कम करने की बात की थी, जो प्राइसेस प्रॉमिस की गई थी उससे भी ज्यादा कमी जो है वो हो रही है और ओपन मार्केट में हो रही है। जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा, ये कभी नहीं होता, ना किसी सूबे में हो रहा है कि हमारे मिनिस्टर जो है ना वो बेचारे मंडियों में सुबह सुबह खड़े होते हैं जाके और वहां पर मेक श्योर करा रहे होते हैं कि कीमतें कम हो। और मैं आपको बड़ी अल्लाह पाक से डर के कह रही हूँ, इंशाल्लाह ताला ये भी 5 रमजान है, 10 रमजान के करीब इंशाल्लाह फिर आपके साथ बैठेंगे और ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड जो है महंगाई के हवाले से ये आपको नजर आएगा। और जहां तक टीमों की बात है, भाई हर एक डिप्टी कमिश्नर ने अपने अपने हल्के अपने अपने इलाके के अंदर कितने लोग हैं जिनके ऊपर ये हेल्पर्स पहुंचने हैं और कितनी टीमें उसने बनाई है, ये उसकी विल है कि वो उसको कैसे उसने अपना टाइम मीट करना है। डैशबोर्ड के ऊपर वो साथ साथ मॉनिटर हो रहा है, वो साथ साथ हर घंटे के हिसाब से अपडेट होता है। तो वो उसको 200 टीमें चाहिए, उसको 150 टीम चाहिए, उसको एक दिन 200 चाहिए थी, दूसरे दिन 150। तो इसकी एग्जैक्ट तादाद मैंने पहले भी गुजारिश की थी, आज आपने फिर कोई सवाल पूछा, मेरी आज भी यही गुजारिश शिबाशी के दौर में कामयाब रमजान बाजार रही, मॉडल बाजार के साथ साथ रमजान बाजार रही। आप भी सर्व कर चुके हैं, सिर्फ 10 बाजार की इस बड़े लाहौर शहर को क्या कानून है, क्या ये अच्छा नहीं था कि रमजान बाजार भी लगाए जाते? आप लोग भी इस बात पर बात कर रहे हैं। और ये भी बता दीजिएगा कि इस हाल में जहाँ ओपन मार्केट ये बात एक बड़े लोग हैं, मतलब यानी कि काफी ज्यादा तादाद के लोग हैं। मैं इसमें सिर्फ एक चीज बता दूं कंपैरिजन देने के लिए सारे साथियों के लिए। अभी 2 जगह से सवाल आ गया कि रमजान बाजार की तादाद। रमजान बाजार अगर आप शहर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 है, जो ट्रेडिशनली मैं आपको बताया कि पिछले 10 साल भी मैं एक दफा मिनिस्टर और एक दफा मैंने होने के नाते ये मेरा ही सब्जेक्ट हुआ करता था, मैं करता था। उस वक्त 20 होते थे, तो उन पे जो सब्सिडी या जो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए होता था वो शायद 1 या 2 बिलियन का होता था। उस वक्त भी हमारी गवर्नमेंट होती थी। ये इस वक्त जो हमने जो प्रोजेक्ट जो यहाँ पे किया है निगहबान प्रोग्राम के तहत, उसमें 30 बिलियन की सब्सिडी है, किसी सूरत में भी मैच ही नहीं है। ये उस वक्त के रमजान बाजार की सर्विस का और आज जो ये जो पैकेज दिया है फूड एम्बर्स की शक्ल में, ये हर सूरत में बहुत बड़ा पैकेज। मैं सिर्फ इसमें ऐड कर दूं, एक तो आते ही ये बड़ा चैलेंज था, ये बड़ा टास्क था। अब ये हुकूमत को आए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि हमें ये प्रोग्राम जो है डेवलप करना था। रमजान बाजार में अगले साल इंशाल्लाह ताला उसमें जो एक प्लानिंग के साथ हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा उसको प्लान करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि ये भी एक माइंड में था कि कम से कम खर्चा हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे ज्यादा होते हैं जो आपको रमजान बाजारों के अंदर जो है वो मिलते हैं, और सब्सिडी जो है वो डायरेक्टली आम आदमी तक पहुंच सके। ये और थी जिसको ये किया गया। एक कार्ड लेकर जाती है लेकिन उनको कह दिया गया आपका लिस्ट नहीं है, जगह आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारी खबर थी जो अपना वापस आ जाती है, उनका नाम रजिस्ट्री होता है। देखिए इसमें एक है कि हमारी हम सियासी लोग हैं, गली मोहल्लों में हमारे कनेक्शन मौजूद है, और सुन लीजिएगा तो हमें भी इसका फीडबैक आता था। ये चीफ मिनिस्टर साहब तक गया है, मगर उनका एक क्लियर डायरेक्शन है कि हमें इसको ट्रांसपेरेंट वे में सिर्फ और सिर्फ जो BISP का डाटा है उसके तहत अपडेट करना है, और नादरा का जो डाटा है उस पर करना है। जो नेक्स्ट ईयर जब हम करेंगे तो कोशिश करेंगे कि डाटे को भी बेहतर कर लें और इन सारी चीजों को भी बेहतर करें। मगर अभी तक हमें इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं। इसमें एक ऐड कर दूं कि भाई साहब, अगर आपने सुनी होती मेरी पिछली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर दफा गुजारिश करती हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब ने एक नया सर्वे ऑर्डर कर दिया है। ये भी पाकिस्तान की पंजाब की तारीख में किसी सूबे में पहली दफा
दफा होगा कि एक स्पेसिफिक सूबे का जो है वो गुर्बत का सर्वे होगा और उसके अंदर जो मुस्तकीन आएंगे, अब आगे जो भी प्रोग्राम वो इनिशिएट करेगी उसमें उस सर्वे के डाटे को लिया जाएगा। हमारे पास डाटा जो अवेलेबल है उसी के ऊपर होना था और हमें भी बहुत, चीफ मिनिस्टर साहब को बहुत तकलीफ है इस बात के ऊपर, जो खवातीन वापस जाती हैं उसके ऊपर बहुत तकलीफ का इजहार करती हैं कि ये उनका दिल चाहता है कि वो हर एक को देख, लेकिन कोई सिस्टम को मैकेनिज्म जो है वो नहीं करता था। जी भाई आप ये कहिएगा कि जो रमजान का मामला उसके तहत जो आता है उसकी आपकी ऐसी जारी की हुई है कि सिर्फ देसी नमक इस्तेमाल होगी और आपको जो टेम्पर है सबसे महंगी आइटम जो आटा ही है 10 किलो। तो लाहौर के जो मिलियन के वाले प्लाट हैं वो 100% इम्पोर्टेड करना बना रही है या 70-30% ला रही है ताकि कॉस्ट कम हो जाए। ठीक 15 मिनट बाद आप मेरी कंपनी करें, आपको इसका मैं जवाब फील्ड में जाकर देता हूँ। चले मैं उन्हीं मिलों में जा रहा हूँ जिन पे आप निशानी 15 मिनट बाद चले मेरे साथ अभी। आटे की कीमतों में क्या आपकी जो स्पोर्ट प्राइस है वो है 45 रुपये, आप बेच रहे हैं 47 रुपये। इसका मतलब है कि आपका जो अपना रेट है उतनी आटे की कीमत बढ़ गई है। पहली दफा हुआ है कि निगरान हुकूमत ने जब ये रेट ऊपर दिया तो 2850 और 2860 रुपये का 20 रुपये दिया और आज भी 1360 और 70 रुपये का 10 किलो का बिल है। आप क्या समझते हैं कि इस प्राइस पे जो कि आप जिस पे आप चीज कर रहे हैं बिलों को, क्या वो प्राइस दुरुस्त है या इसमें कोई तरमीम करने की जरूरत है? दो चीजें हैं, एक तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह इस आटे की प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई किसी किस्म की इंक्रीज आपको नजर नहीं आएगी। दूसरा, आपने जो प्राइस कोट की है आज की इस वक्त की जो नोटिफाइड प्राइस है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करती है या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करती है, जो फूड डिपार्टमेंट करता है, वो नोटिफाइड प्राइस से कम पे आज बिक रहा है। वो अलग से डिबेट है कि इतनी प्राइस क्यों हुई, मगर जो फूड की बीट करते हैं आप माशाल्लाह उनमें से हैं। आपको पता है कि इस वक्त जो फूड डिपार्टमेंट की जो नोटिफाइड प्राइस है कम पे अवेलेबल है। ये इस चीज की लॉजिक है कि इस वक्त आटे की कोई शॉर्टेज नहीं और इंशाल्लाह लजीज ना आने वाले दिनों में होगा। किसान चीज है जो है बना के स्टॉक करता है, जब दुकान तक आती है, आप समझते हैं तो ऐसा बनाने की जरूरत है कि किसान कितने में वो चीज स्टॉक कर रहा है, दुकानदार वो चीज कितने में स्टॉक कर रहा है, मैं समझ किसान की मीट की बात करें, किसकी बात करें? आप वेजिटेबल फ्रूट्स की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ये तो हमेशा से रहा। हमारी ये सारी एक्सरसाइज भी इसलिए है कि जो मिडल मैन है इसके कई टीयर्स हैं। अब मिडल मैन, आप लोग ना मिडल मैन को स्टेट में विलन कह देते हैं। मिडल मैन के पॉजिटिव उनके जो है ना वो भी रोल भी सामने आता है कि मिडल मैन उसको सपोर्ट करता है। उसे जब उसको पैसे की जरूरत होती है मिडल मैन रिस्क लेता है। मैं उसकी एडवोकेसी नहीं कर रहा मिडल मैन की, बट उसके पॉजिटिव रोल भी है। इंडिया में तो उसको जो है उसको तो लीगल उसको शेयर दे दी गई है। इसलिए ऐसा नहीं है, सिर्फ काम यही है जो प्रैक्टिकल काम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जस्ट एक एफर्ट का नाम है और लेग वर्क का नाम है। जो गवर्नमेंट जो भी इसको अपनी रियलाइज कर देगी कि लोगों को ये इश्यू है, जितना लेग वर्क कर देगी, जितना इस पर फोकस कर देगी, उसका रिजल्ट रिफ्लेक्ट होगा। यही नहीं करेंगे कि जो 3 दिन की आपने बात की, ताकतवर पाकिस्तान में चीनी मामले में आकर मामले आपको जब ये माह रमजान गुजर जाएगा तो शयातीन को मामले कैसे वायलेशन पर डिपेंड करता है। हर शयातीन को जो मैंने जिसको आपने कहा उन सबको अरेस्ट नहीं किया जाता। हमने कहा है कि हमें 30,000 वायलेशन मिली। हमने जो शयातीन अरेस्ट किए उसको तो हम 250 या 2,000 कह रहे हैं ना, तो ये भी वेरी करता है कि किस शैतान ने कितनी बड़ी गलती की है। तो इसमें आप यकीन रखें जो भाई ने सवाल किया, अभी यहाँ से निकल के मैंने कहा है कि मुझे जो कंपनी करना चाहता है आज कर ले, आपको पता चल जाएगा कि जिस तरह की वायलेशन देखेंगे, अगर स्टेट में वो उसकी है ही वहां पे वायलेशन तो वो अरेस्ट होगा। अगर उसकी वायलेशन सिर्फ इतनी है कि उसको फाइन इम्पोज कर दिया जाए तो उसमें फाइन होगा। ये इस वक्त जो है अभी तक 4,858 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। 4,858 थोड़े लोग नहीं होते भाई। और 1682 FIR रजिस्टर हो गई हैं। आखिर काम कर रहे हैं ना, आखिर इसके ऊपर चेक रखा हुआ तो ये सब कुछ हो रहा है और बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। चीफ मिनिस्टर साहबा की घंटों की मीटिंग होती है, ये नहीं है कि प्रेस टॉक है इसको 20 मिनट में खत्म होना। घंटों की मीटिंग होती है, पूरी गवर्नमेंट मौजूद होती है, हमारे मिनिस्टर की टीम बनी हुई मौजूद होती है और कई घंटों 3-3 घंटे मीटिंग चलती है। उसकी फॉलो अप में फिर दोबारा उसकी 3-4 घंटे। आप दोनों से ये क्वेश्चन है कि अभी आप वायलेशन की बात की, जो कानून की नहीं है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि वायलेशन का जो फाइन है वो बहुत माइनर सा होता है और सजा भी कम होती है
اور اس کے بعد یہ لوگ پھر باہر آ جاتے ہیں، پھر سارا سال یہ ہوردنگ کرتے ہیں، ناکہ پوری کرتے ہیں. انہی کے خلاف لڑنا ہی ہماری ایفرٹ ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح ہے. بالکل میں اسی کو کرتا ہوں، انہی کے خلاف لڑنا ہی اسی کو ہم ایفرٹ کا نام دے رہے ہیں اور چلتا رہے. آپ کو بتا دیتی ہوں ابھی تک جو میرے پاس ریکارڈ موجود ہے 6,22,51,650 روپے فائن کیا جا چکا ہے، اور جس میں اوور چارجنگ جو ہے وہ 22,938 جو ہے جس کے حوالے سے یہ فائن امپوز کیے گئے ہیں. اور اس کو جیسے میں نے کہا کہ ایک نئی اتھارٹی بھی چیف منسٹر صاحب نے بتانے کی گئی ہے، تو ظاہر ہے اس کے اوپر اگر کوئی چینجز ریکوائرڈ ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی کیے جائیں گے. آپ شکریہ. اور بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ ماڈل بازاروں میں یا رمضان بازاروں میں بھی جا کے جو آپ کا رمضان اس سے مستفید بھی نہیں ہو رہے. پروگرام بنا رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی اسی رمضان میں اسی رمضان میں تو ممکن نہیں ہوگا نا. میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ ہمیں آتے ہی یہ جو پہلی میٹنگ چیف منسٹر صاحبہ نے کی تھی وہ لینے کے بعد وہ اسی حوالے سے تھی. اور ظاہر رمضان صرف تھا جو اویلیبل ڈیٹا تھا، جو اویلیبل ریسورسز تھے، جو اویلیبل میکنزم تھا، اس کے تحت یہ پروگرام ڈیزائن کیا گیا. اور جیسے میں نے کہا کہ اب یہ اگلے رمضان سے پہلے ہمارے پاس ٹائم بھی ہوگا، ہمارے پاس ہمارا اپنا ڈیٹا بھی ہوگا. تو یقیناً جو مستحقین ہیں ہم پوری کوشش کریں گے جتنا پاسبل ہے کہ جو مستحقین ہیں جو بالکل ہی جن کو ڈیزرو کرتے ہیں، جن کو پاس ہر حالت میں حکومت کو پہنچنا چاہیے، ہماری وعدہ اور کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تک ضرور پہنچے.